Good morning, student. In previous video, we have seen the information about mantle and their types. Dear student, we are seeing lesson number 2, interior of the earth, page number 13. Dear student, today we will see information about core. Okay, it is the last layer of the earth. All of you know there are three layers: crust, mantle, and core. So today I am going to start about the core. The core start from around the depth of 2900 km from the earth's surface. As we know, the average depth of the mantle is 2870 km. So this core start from around 2900 km from the earth's surface. अर्थ सरफेस से 2900 किलोमीटर्स के बाद में ये क्या चालू होता है? कोर. द पार्ट ऑफ द अर्थ इंटीरियर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द मेंटल अप टू द सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ इज कोर एंड द इंटीरियर पार्ट मीन्स सेंटर पार्ट एक्सटेंड फ्रॉम द मेंटल. ओके, मेंटल से ये क्या होता है? एक्सटेंड होता है, वो बढ़ते जाता है. ओके, एंड द थिकनेस ऑफ द कोर इज अबाउट The thickness of the core is about 3471 km. How much? The 3471 km is the thickness of core. Core की thickness कितनी है? 3471 km. This layer can be divided into outer core and inner core. And this core also divided into two parts: outer core and inner core. So first of all, we will see about the outer core. Outer core extend from around 2900 km to 5100 km. ये जो outer core है कहाँ से स्टार्ट होता है? 2900 km टू कहाँ तक? 5100 km तक उसकी डेप्थ है, उसकी गहराई है outer core. The secondary waves cannot passes through the core. All of you know there are three waves: primary wave, secondary wave, and surface waves. These energy waves, all of you know, travels inside the earth, and they create a tension inside the earth, and due to this tension, due to the compressions, earthquake, volcanic eruptions, mountain buildings, hold mountain, this landform forms due to the waves. So secondary wave cannot passes through the cores. इस कोर से जो सेकेंडरी वेव्स है वो पास नहीं हो पाते. दे गेट एब्जॉर्ब इन दिस रीजन, वो उसी पे क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसमें वो मिल जाते हैं. दिस हैड लीड द साइंटिस्ट टू बिलीव दैट द कोर कुड बी लिक्विड और सेमी लिक्विड इन नेचर. सो जो साइंटिस्ट है जो जियोलॉजिस्ट है दे बिलीव दैट द कोर कुड बी लिक्विड और सेमी लिक्विड. वो लिक्विड है या सेमी लिक्विड है मतलब वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं. द प्राइमरी वेव्स ट्रैवल थ्रू दिस लेयर. इस लेयर से जो प्राइमरी वेव्स हैं वो ट्रैवल हो जाते हैं, बट देयर स्पीड रिड्यूस व्हेन पासेस थ्रू दिस लेयर. बट व्हेन द प्राइमरी वेव्स ट्रैवल फ्रॉम दिस लेयर देयर स्पीड, देयर वेलोसिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, उसका जो स्पीड है वो कम हो जाता है. द डेंसिटी ऑफ द आउटर कोर इज 9.8 ग्राम क्यूब मीटर्स एंड द डेंसिटी ऑफ द आउटर कोर इज 9.8 grams cube per meters. The temperature of the liquid outer core is around 5000 degrees Celsius. और जो outer core है उसका जो टेम्परेचर कितना है? 5000 degrees Celsius. Means too much high temperature is present in the outer core. Okay, we have learned that the outer core of this interior is liquid state. So the outer core is in the liquid state because the temperature is too much high. उसका टेम्परेचर जितना है कितना? how much? 5000 degrees Celsius. That's why this outer core is in liquid state. And the proportion of iron is more in this layer. और उस लेयर में outer core में सबसे ज़्यादा क्या है? आयरन के सब्सटेंस है. the proportion of iron is too much in the outer core. Vertical current originate in this liquid layer. That's why vertical current, क्योंकि जो करंट है ओरिजिनल करंट एंड वर्टिकल, बट इन दिस आउटर कोर वर्टिकल करंट क्या हो जाते हैं? ओरिजिनेट, मतलब उसको वहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं वर्टिकल करंट. दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एरिया. सो इट इज वी कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन इट इज अ लिक्विड स्टेट आउटर कोर. एंड
the proportion of iron is more in the outer core and the vertical current originate in this outer core. The difference between temperatures of the outer and inner core gives rise to vertical current, because due to the vertical current there is a difference between outer and inner core. इस vertical current की वजह से outer core और inner core में क्या है, difference है. Okay, the earth rotation gives them eddy motions. So okay, all of you know the earth rotations. Earth rotate होती है, okay, 24 आवर्स में क्या होती है, रोटेट होती है. ओके, इन द एडी मीन्स सर्कुलर मोशंस, वो सर्कुलर मोशन में क्या होती है, रोटेट होती है. ओके, एंड इलेक्ट्रिक करंट डेवलप इन दिस स्पाइरल एडीज ऑफ लिक्विड आयरन एंड दस मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेट. सो ड्यू टू दिस वर्टिकल करंट और इलेक्ट्रिक करंट, ओके, वो जो रोटेशन होता है इन द सर्कुलर मोशंस, ओके, ड्यू टू द रोटेशंस, okay, it is of liquid iron. All of you know there is too much proportion of iron and thus liquid iron and thus magnetic field is generate. इसलिए वहाँ पे क्या होता है, मैग्नेट, वहाँ पे मैग्नेट जनरेट होता है. इन द आउटर कोर में क्या होता है, मैग्नेट जनरेट. दैट्स व्हाई देयर जनरेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द आयरन. इट इज समटाइम्स कॉल्ड जियोडायनमो. इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, जियोडायनमो भी बोलते हैं. किसको, आउटर कोर को. दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज फंक्शनल इवन आउटसाइड द अर्थ सरफेस टू फॉर क्वाइट डिस्टेंस. और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और उसका जो फंक्शन है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अर्थ सरफेस में भी वो क्या करते हैं, वो एक्टिव होते हैं. ओके, आउटसाइड द अर्थ सरफेस फॉर द क्वाइट डिस्टेंस. मतलब उसका जो करंट इतना रहता है, वो इलेक्ट्रिक करंट, उसके मतलब करंट की वजह से उसका इफेक्ट अर्थ सरफेस के ऊपर भी होता है. एज ए रिजल्ट द कवर डेवलप अराउंड द अर्थ बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. सो अपना जो अर्थ सरफेस है वो कवर रहता है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड. ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, ओके, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से. बिकॉज देयर इज, वी कैन से, हाई प्रोपोर्शन ऑफ आयरन. वहाँ पे आयरन का प्रोपोर्शन ज़्यादा है. दैट्स व्हाई दिस फील्ड इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड. एंड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, आवर अर्थ सरफेस इज प्रोटेक्ट. द अर्थ एटमॉस्फेयर इज प्रोटेक्ट फ्रॉम द सोलर विंड्स कमिंग फ्रॉम द सन. एंड अर्थ का जो एटमॉस्फेयर आल्सो प्रोटेक्ट होता है सोलर विंड्स. सो जो सोलर विंड्स, ओके, कमिंग फ्रॉम द सन, जो सन से जो सोलर विंड्स आते हैं, ओके, उसको भी क्या करते हो, प्रोटेक्शन देते हैं. द मैग्नेटिक फील्ड दस डेवलप अराउंड द अर्थ, इट्स कॉल्ड मैग्नेटोस्फीयर. दैट्स व्हाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो कॉल्ड एज मैग्नेटोस्फीयर बिकॉज इट इज प्रोटेक्ट फ्रॉम कैसे, सोलर विंड, दोज विंड कमिंग फ्रॉम द सन. दैट्स व्हाई इट इज अ प्रोटेक्शन फॉर अर्थ सरफेस. दिस इज फिफ्थ एंड इम्पोर्टेंट स्पेयर ऑफ द अर्थ. That's why it is a fifth layer. Magnetosphere means it is a fifth layer of the earth and it is a, we can say, very important sphere. Okay, in this way this outer core, okay, today's video we have seen the information about outer core. Okay, the depth around 2900 kilometers to 5100 kilometers and the, we can say, the average temperature of the outer core is 5000 degree Celsius. And this outer layer, okay, outer core is called as magnetosphere. Okay, it is also because there is a high proportion of irons, okay, they create a electric current. Okay, that's why it is also this layer also protect us from the, we can say, solar wind, those wind coming from the sun. In this way, dear student, today's video we have seen the information about outer core. Okay, next video we will see information about inner core. Thank you.